Hello all, welcome to the new series. So this series is about the subject numerical and statistical method, which is for third year mechanical engineering students. So we will discuss one by one unit. We will try to cover all the points, all the methods which is in the unit number 1 to unit number 6. So first start from the unit number first. So unit number first is about the root of equation. So basically the first unit is divided into the two parts. First part is about the root of equation and second part is about the simultaneous equation. So उसमें हम जितनी सारी मेथड्स दी है टोटल हमें 5 मेथड्स यहाँ पे देखना है, तो वो चार पांचों जो मेथड्स है वो हम वन बाय वन देखेंगे. सो फर्स्ट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन. हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड हमारे सिलेबस में दी है, तो उसके लिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं. उसके बाद हम डायरेक्टली बाइसेक्शन मेथड के ऊपर जाएंगे, जो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन की कैलकुलेट करने के लिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड हमारे सिलेबस में हमें दिया है. So here this is the syllabus for numerical and statistical methods for unit number 1. So you can see here the first part of unit number 1 is about the root of equation. You have to calculate the root of equation by using the bracketing method and Newton-Raphson method. और आप इसे कह सकते हो ब्रैकेटिंग या ओपन एंड मेथड. ब्रैकेटिंग मेथड में बाइसेक्शन मेथड आता है और ओपन एंड मेथड में न्यूटन रैप्सन मेथड आता है. Now the second part in unit number first is simultaneous equation, or you can say the solution of simultaneous equation. So here in this second part, first method is Gauss elimination with partial pivoting, and second is Gauss Seidel method. Third one is Thomas algorithm for tridiagonal matrix. So this unit number 1 contain total 5 methods. राइट. सो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आपको इन्हीं पांचों मेथड में से कोई 2 या 3 मेथड आपको पूछी जा सकती है. आपको टोटल 15 मार्क्स के लिए ये पूरा जो यूनिट है आएगा, क्योंकि टोटल आपका इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है 30 मार्क्स का. राइट. तो आप ये कंसिडर करके चलो कि यूनिट नंबर 1 पे आपको 15 मार्क्स आएंगे और यूनिट नंबर 2 पे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे. राइट. सो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स ऑफ इक्वेशन. की रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, और हम बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करके रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हियर the first part is roots of equation. Here you can see roots of equation. So the roots of equation we can calculate by here in this syllabus. We are going to use for the iterative method for calculations of roots of equation. बट अदर कौन से मेथड्स है जो कि हम रूट्स ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे वो हम देखेंगे. पहले तो आपने एक जो फॉर्मूला है उसके बारे में आपने देखा होगा. तो फॉर्मूला इज लाइक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये फॉर्मूला आपको पता होगा. तो ये जो x है, दिस x इज कॉल्ड एज अ रूट ऑफ इक्वेशन. और आपका इक्वेशन कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मान लो अगर इस इक्वेशन के लिए आपको रूट निकालना है, तो ये एक फॉर्मूला यूज करके हम रूट ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. नाउ अगेन द सेकंड मेथड यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, दैट इज trial and error method, or we can say the graphical methods are there for calculation of root of equation. Now the third one is iterative methods. So by using iterative method also we can calculate the roots of equation, and here we are going to discuss these iterative methods. By using this iterative method how to calculate the root of equation. अभी iterative methods क्यों use करना है, because the iterative methods are easy to understand and हम easily roots of equation calculate कर सकते हैं. और with the help of computer also we can calculate the root of equation by doing programming and all these things. वो जो भी आपका पार्ट होगा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो आपका आपके प्रैक्टिकल सेशन में आपके टीचर्स जो है वो कवर कर लेंगे. राइट. सो हियर हम बस जो मेथड्स है वो एनालिटिकली कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम ट्रेडिशनली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं,
वो स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. सो हियर the roots of equation we can calculate by using this iterative method. So basically these iterative methods are divided into the two main types. Here the first part is bracketing method, or first type is bracketing method, and second is open end method, or you can also call it the open method, right? Now here in this bracketing method in our syllabus we have to only discuss about the bisection method, right? And in case of this open end method there is only one method, that is Newton-Raphson method, right? यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड एक होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में हमें मेंशन नहीं किया गया है. सो ब्रैकेटिंग मेथड में हम बाइसेक्शन मेथड देखेंगे और ओपन एंड मेथड में हम न्यूटन-रैप्सन मेथड देखेंगे, राइट? तो अभी ये जो बाइसेक्शन मेथड आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं, वो बाइसेक्शन मेथड से आप रूट कैलकुलेट कर सकते हो. उसमें दो केसेस होती है, एक तो आप बाइसेक्शन मेथड यूज कर सकते हो इटरेशन क्राइटेरिया से, और एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो रूट ऑफ इक्वेशन बाय कंसीडरिंग द एक्यूरेसी क्राइटेरिया, राइट? तो हम दोनों वन बाय वन देखेंगे. पहले हम इटरेशन क्राइटेरिया देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड यूज करके हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग इटरेशन क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और बाय यूजिंग एक्यूरेसी क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे. Now similarly here in this Newton-Raphson method, again you can calculate the root of equation by considering the iteration criteria, as well as again you can calculate the root of equation by considering the accuracy criteria, right? Now अभी इन दोनों का डिफरेंस आपको न्यूमेरिकल में कैसे पता चलेगा कि आपको न्यूमेरिकल जो है वो इटरेशन क्राइटेरिया का है या एक्यूरेसी क्राइटेरिया का है. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको वो डिटेल डिफरेंस बता दूंगा, और उसमें कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी नहीं होती है. इटरेशन की क्राइटेरिया में आपको नंबर ऑफ इटरेशन दिए हुए रहते हैं, और एक्यूरेसी की क्राइटेरिया में आपको एक्यूरेसी की वैल्यू दी रहती है, राइट? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन. सो दो मेथड्स है, और बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन-रैप्सन मेथड, और अगर आप उन दोनों को डिवाइड और अगर करके दोगे तो बाइसेक्शन मेथड इटरेशन क्राइटेरिया से होगा, एक्यूरेसी से न्यूटन-रैप्सन सिमिलरली इटरेशन एंड एक्यूरेसी. सो हियर दिस video is about the bisection method of iteration criteria, right? Now we'll move towards directly numerical. So directly हम numerical पे जाते हैं और वो हम देखेंगे कि numerical solve कैसे करते हैं bisection method का iteration criteria से related. So here you can see the numerical, you can read the numerical first. As always जब भी आप कोई भी numerical solve करते हो तो सबसे पहले उसे आपको read करना है अच्छी तरीके से. उसमें आपको क्या क्या दिया है वो समझना है और गिवन डेटा लिखना है. सो हियर राइट डाउन द गिवन डेटा फर्स्ट, राइट? सो हियर देयर sorry, using 3 iterations of bisection method find the root of equation. अभी यहाँ पे क्लियरली बोला है यूजिंग 3 iterations, मतलब नंबर ऑफ iterations आर गिवन इन द न्यूमेरिकल. सो नंबर ऑफ इटरेशन हम स्मॉल n से डिनोट करते. सो हियर 3 iterations आर देयर, सो वी हैव टू राइट डाउन n is equal to 3. Now नेक्स्ट इज फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन. अभी इक्वेशन भी हमें दिया है. इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन लाइक इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट? After that, the initial guesses are x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2. So initial guesses is also given in the numerical. So x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2, right? So ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है and we have to calculate the root of equation for this given equation, that is x cube minus x minus 2, right? अभी आपको ये पता चलेगा कि इसको ब्रैकेटिंग मेथड क्यों कहते हैं. जो बाइसेक्शन मेथड हमने लास्ट जो एक टी डायग्राम देखा था उसमें बाइसेक्शन मेथड जो था वो ब्रैकेटिंग मेथड के अंडर था. तो ब्रैकेटिंग मेथड मतलब क्या है कि आपको एक ब्रैकेट दिया है, जैसे x इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2. तो आपका जो रूट ऑफ इक्वेशन आने वाला है वो ये दोनों जो 1 और 2 है उन उन दोनों नंबर्स के बीच की कोई वैल्यू होगी. मतलब आपके लिए एक ब्रैकेट बना के दिया है, राइट? सो अभी अगर मान लो अगर किसी केस में, किसी न्यूमेरिकल की केस में अगर ये इनिशियल गेसेस गिवन नहीं है
So if the initial guesses are not given in the numerical, and we have to assume the initial guesses and we have to satisfy the conversion condition, right? So conversion condition क्या है, initial guesses कैसे calculate करना है, वो आने वाले numerical में आपको पता चल जाएगा. So here initial guesses are given in the numerical. So we have to write down like this: x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2, right? Now after that, here first we have to check whether these initial guesses are correct or not. So we have to satisfy the conversion condition. So here write down check for convergence condition, right? So the conversion condition for bisection method is f of x1 into f of x2 is less than 0, right? मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस f of x1 and f of x2 is less than 0 आना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो इनिशियल गेसेस हमें दिए हैं ये इनिशियल गेसेस करेक्ट है, राइट? सो हियर how to calculate the f of x1 first? By putting the value of this x1 into the given function, we can calculate the f of x1 value. Similarly, for calculation of f of x2, by putting the value of this x2 into this given equation, we'll get the f of x2. So हम एक एक करके देखेंगे. So here first f of x1 is equal to, इक्वेशन हमारे पास है x क्यूब माइनस x माइनस 2. तो ये x1 की जो वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन में हम डालेंगे. सो लाइक 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको -2 मिलेगा. इसको आपको मार्क डाउन करना है. दिस इज निगेटिव -2, तो आपको निगेटिव इस तरीके से लिखना है. सिमिलरली कैलकुलेट द f ऑफ x2, राइट? नाउ हाउ? by putting the value of x2 into this equation of f of x and calculate, you will get the f of x2. So here 2 cube minus 2 is equal to, तो कैलकुलेट करो आपको ये मिलेगा 4 विच इज पॉजिटिव, राइट? आपको ये हमेशा बात याद रखनी है. आपको जब भी ये f of x1 f of x2 आप कैलकुलेट करोगे, आपको उसका साइन यहाँ पे इंडिकेट करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अभी आपको यहीं पे पता चल जाएगा, दोनों अपोजिट साइन है. अपोजिट साइन अगर आ गए तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और जो इनिशियल गेसेस है वो दोनों इनिशियल गेसेस करेक्ट है, राइट? तो हम हमें हमें जो भी रूट ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन के लिए, वो हमें इन दोनों के, वो दोनों नंबर के बीच की एक वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज दिस कन्वर्जन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? तो एक निगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब कन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाइड. लगे तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके देखो, आपको लेस देन 0 आंसर मिल जाएगा, राइट? सो नाउ हियर आफ्टर फाइंडिंग आउट द initial guesses are correct by satisfying this conversion condition, we have to move towards the iteration. but यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है conversion condition satisfied, initial guesses are correct, राइट? तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये आपको यहाँ पे नोट लिखना है और आपको आगे जाना है इटरेशन के ऊपर. नाउ इटरेशन नंबर फर्स्ट, iteration first, right? Now here in this iteration number first, we have a initial guesses. हमने वो initial guesses हमारे पास है जो कि हमने चेक किए हैं, जो कि conversion condition satisfied हो रही है. So initial guesses are correct. So we have to write down like this: x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2. ये जो दो initial guesses है. Now here using bisection formula, using bisection फॉर्मूला, और बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है? x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला है बाइसेक्शन मेथड का, राइट? तो यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x3 की,
राइट. सो 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको मिलेगा 1.5, राइट. 1.5 is x3. Now here, after calculating the value of this f of x3, the next step is you have to calculate the value of f of x3. After calculating the value of this x3, you have to calculate the value of f of x3. Now again कैसे calculate करना है? जो x3 की value आपको मिली है 1.5, ये आपको given equation में put करना है, आपको f of x3 मिल जाएगा, right? So here equation is x cube, तो यहाँ पे 1.5 ब्रैकेट क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2, इसको आप कैलकुलेट करो, राइट. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग हियर विल गेट द वैल्यू दैट इज माइनस 0.125. सो ये देखो माइनस साइन आ गया, यहाँ पे आपको फिर से लिखना है माइनस, राइट. ब्रैकेट में माइनस लिख देना है, राइट. अभी यहाँ पे थोड़ा आप हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हो, यहाँ पे आप फंस जाते हो. देखो यहाँ पे आपको अभी वैल्यू रिप्लेस करनी है. जैसे कैसे? अभी जैसे ये निगेटिव आ गया तो आपको प्रीवियस निगेटिव देखना है, राइट. तो प्रीवियस निगेटिव क्या है? ये x1 है, राइट. ये x3 निगेटिव है और प्रीवियस निगेटिव है ये x1. तो हियर यू हैव टू राइट डाउन रिप्लेस x1 बाय x3, राइट. रिप्लेस कौन सा करना है आपको? ये निगेटिव आ गया एफ ऑफ x3, सो प्रीवियस निगेटिव आपको देखना है और वो रिप्लेस करना है. प्रीवियस निगेटिव के लिए इनिशियल गेस क्या था? x1 था. सो हियर दैट्स व्हाई x1 रिप्लेस बाय x3. सो द न्यू गेसेस आर x1 इज इक्वल टू, अभी x1 हमने रिप्लेस कर दिया x3 से. x3 कितना है हमारा? 1.5, तो यहाँ पे 1.5 एंड x2 इज इक्वल टू एज इट इज कितना था? 2, तो वो एज इट इज आएगा. सो दीज आर द न्यू इनिशियल गेसेस फॉर नेक्स्ट इटरेशन. नाउ आफ्टर फाइंडिंग आउट द न्यू इनिशियल गेसेस, इटरेशन नंबर 2, इटरेशन नंबर 2, राइट. सिमिलरली अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप जैसे आपने इटरेशन 1 में किया था. हमारे पास इनिशियल गेसेस है, सॉरी हमारे पास गेसेस है जो हमने न्यू फाइंड आउट किए. तो यहाँ पे लिखना है x1 इज इक्वल टू 1.5 एंड x2 is equal to 2, right. Again by using the bisection formula, that is x4 is equal to x1 plus x2 divided by 2. Put करो वैल्यू 1.5 plus 2 divided by 2. Calculate the value of x4. Now after calculating the value of x4, like you have to write down here 1.75, right. ये x4 आपने calculate कर लिया. After calculating the value of x4, again calculate the value of f of x4. Similarly, जैसे आपने f of x3 के टाइम कैलकुलेट किया था, by putting the value of x4 into the given equation, that is x cube minus x minus 2. So here x cube is 1.75 क्यूब माइनस 1.75 माइनस 2. इसको कैलकुलेट करो, आपको वैल्यू मिलेगी 1.6093 विच इज पॉजिटिव, राइट. आपको इंडिकेट करना है पॉजिटिव है निगेटिव. अभी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है? हियर अगेन पॉजिटिव है तो आपको प्रीवियस पॉजिटिव ढूंढना है. जैसे कि आप यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये निगेटिव है, इसको छोड़ दो. आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखो ये पॉजिटिव मिल गया. सो पॉजिटिव के लिए गेस कौन सा यूज किया था हमने? x2. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिप्लेस x2 बाय x4 और न्यू गेसेस आर x1 इज इक्वल टू एज इट इज जो प्रीवियस था 1.5 और x2 हम इस बार रिप्लेस करेंगे किससे? x4 से, जो आया है हमारा 1.75. सो 1.75. सो दीज आर द न्यू इनिशियल गेसेस, राइट, फॉर इटरेशन नंबर 3.
अभी ये ऐसा कब तक करते जाना है, जितने नंबर्स ऑफ इटरेशन हमें मेंशन किए गए हैं न्यूमेरिकल में, तब तक आपको वो रिपीट करते जाना है, सेम प्रोसेस. So here in this numerical you can see the 3 iterations are there. That means we have to do up to the 3 iterations only. After 3 iteration जो भी आपकी x की वैल्यू होगी वो आपका होगा रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर 3 iteration, राइट. सो हियर नेक्स्ट इटरेशन पे हम चलते. नेक्स्ट इटरेशन पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे इटरेशन नंबर 3, इटरेशन नंबर 3 गेसेस हमारे पास है x1 इज इक्वल टू 1.5 and x2 is equal to 1.75. So here again by using Newton, by using bisection formula, so x4 is equal to x4 आएगा, x5 आएगा, x5 is equal to x1 plus x2 divided by 2, right. So here x1 is equal to 1.5 plus 1.75 divided by 2. So calculate the x5. So x5 is 1.625. So this is the final root of equation after iteration number 3. So आप ये कैलकुलेट करने के बाद आपको सिंपली लास्ट में एक लिखना है, द रूट ऑफ इक्वेशन आफ्टर थर्ड iteration is 1.625. So this is the answer. इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. आप फिर से एक बार देख सकते हो न्यूमेरिकल में हमने कैसे किया. नाउ हियर यू कैन सी नंबर ऑफ इटरेशंस आर गिवन, दैट्स व्हाई द न्यूमेरिकल इज ऑफ इटरेशन क्राइटेरिया, राइट. सो आई गेस आपको ये पूरा न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. इटरेशन क्राइटेरिया का एक्यूरेसी क्राइटेरिया में और एक कंडीशन ऐड हो जाती है जहाँ पे आपको एक्यूरेसी चेक करना होता है. सो उसके लिए एक कंडीशन है, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज लेस देन इक्वल टू एक्यूरेसी. वो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है. और नॉर्मली एक्यूरेसी के न्यूमेरिकल में जो इटरेशंस है वो 7 to 8 तक जाते हैं. सो हियर दिस इज अबाउट टुडेज सेशन ऑन बाइसेक्शन मेथड ऑफ इटरेशन क्राइटेरिया. आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट आउट कर सकते हो, और आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. सो थैंक यू.